السلام علیکم۔ میں فلم دنیا کی جانی مانی شخصیت دلیپ کمار پر ایک خصوصی مضمون لے کر حاضر ہوں۔ پہلے پردے کا چاند محمد یوسف خان۔ 11 دسمبر 1922 لالہ غلام سرور کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام محمد یوسف رکھا جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، محمد یوسف نام رکھے جانے کے پس پردہ کیا فکر رہی ہوگی۔ بچے پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ زباں سے محمد یوسف نام زباں سے نکل جانا غیر ارادی عمل نہیں تھا، کیونکہ اتنا حسین بچے کا نام محمد یوسف کے سوا دوسرا نام رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ 11 بھائی بہنوں کے بیچ گویا ستاروں کے جھرمٹ میں ایک چاند نمودار ہوا تھا، اور یہ چاند ہی تھا جو پہلے پردے پر دلیپ کمار بن کر چمکا۔ میرا ماننا ہے کہ دلیپ کمار جیسی شخصیت فلمی دنیا میں دلیپ کمار سے پہلے تھی، نہ اب ہے اور نہ مستقبل کے بارے میں کہہ دوں کہ ایک مداح کی اندھی عقیدت مندی تعبیر کی جائے گی، یا پھر بعد از مرگ وفور جذبات کی شدت، جبکہ ایسا نہیں، کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے اور قادر مطلق ہے۔ اس قادر ہے کہ یوسف خان کی طرح تو کیا یوسف خان سے بہتر بھی اس دنیا میں دوسرا یوسف ثانی بھیج دے، لیکن خدا اس پر بھی قادر ہے کہ وہ نہیں بھیجے، کیونکہ جس طرح ارسطو کے بعد دوسرا ارسطو پیدا نہیں ہوا، شیکسپیئر کے پیکاسو، لیونارڈو وینسی، ہومر، خیام، غالب، ابن خلدون، رومی، غزالی، اقبال کے بعد دوسرا پیدا نہیں ہوا، ویسے ہی محمد یوسف خان بھی اپنے آپ میں یکتا و بے نظیر ہے۔ عہدساز شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے جو کسی مکتب، درسگاہ، خاندان یا شہر کی ذہین نہیں ہوتی۔ ان کے اندر خداداد صلاحیت ہوتی ہے جو صرف اور صرف خدا کی نظر خاص کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، چمن میں ہوتا ہے تب کوئی دیدہ ور پیدا۔ دلیپ کمار جیسا نابغہ روزگار جس نے فلمی دنیا میں قدم رکھنے سے قبل کوئی فلم تک نہیں دیکھی ہو، اور جب اداکاری کے لیے پیشکش کی گئی تو انہوں نے اداکاری نہیں کی بلکہ کردار کی زندگی جی کر پردے پر دکھایا، جس کی نقل آج تک سارے اداکار کرتے نہیں تھکتے، پھر بھی یوسف خان نہیں بن پاتے، خواہ وہ دلیپ کمار کے ہم عصر ہوں یا ان کے بعد کی نسل یا موجودہ نسل، جبکہ سب کے سب اداکاری کی تعلیم پا کر متعدد بھاری بھرکم اسناد لیے ہوئے فلمی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ یوسف خان واحد ایسا اداکار ہے جس کی جیب اداکاری کی صنعت سے خالی تھی، لیکن بالی ووڈ کا اکلوتا منفرد اداکار تھا جو کردار کے قالب میں خود کو نہیں ڈھالتا تھا بلکہ اپنے قلب میں کردار اتار لیتا تھا، اور یہ عمل نہایت دشوار گزار ہوا کرتا تھا، جس میں انسان اپنی شخصیت بھول جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اپنے اندر ایک بکھراؤ محسوس کرنے لگتا ہے، نفسیاتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ یوسف خان اس مرحلے سے گزرے، تبھی ایک ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اب آپ سنجیدہ رول پر مزاحیہ رول کو ترجیح دیں، بصورت دیگر آپ ذہنی توازن کھو بیٹھیں گے۔ ان دنوں تو نہیں، لیکن عمر کے آخری پڑاؤ میں اپنی یادداشت گنوا بیٹھے تھے۔ ان کے معالجوں کا کہنا ہے کہ شہنشاہ جذبات کی جذباتیت یعنی کہ ماضی کی یادوں کے نقوش نے ان کے ذہن کو نقصان پہنچایا۔ مغل اعظم فلم یوسف خان مدھوبالا ہماری ثقافت کی ایسی مثال بن گئے جس طرح لیونارڈو وینسی اور مونالیزا، شاہ جہاں اور تاج محل، ہومر، اوڈیسی، مرزا ہادی، رسوا اور امراؤ جان، ادا، خیام اور رباعی۔ کہا جاتا ہے کہ دلیپ کمار سلیم کردار کو اپنے وجود میں ضم کرنے کے عمل سے گزرنے کے لیے شوٹنگ سے گھنٹوں قبل اور بعد میں بھی گھنٹوں اس سیٹ پر جا کر ٹہلا کرتے اور خود کو شاہزادہ سلیم تصور کیا کرتے تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ وہ کردار کو کس طرح جیا کرتے تھے۔
कोहिनूर फिल्म में सितार बजाने की मश्क महीनों की सितार नवाज के सामने जानोए तलमीज तय किया, यहाँ तक कि उनकी उंगलियां लहूलुहान हुई, लेकिन उन्होंने सीख कर ही दम लिया क्योंकि उन्हें नकाली पसंद नहीं थी। फिल्म नया दौर में तांगा चलाने का सीन था। सीन क्या था? पूरा एक नगमा फिल्माया गया है। मांग के साथ तुम्हारा हमने मांग लिया संसार। तांगा चलाना सीखा कि रोल अदा करने के लिए एक फिल्म में अंधे का किरदार अदा करना था। मुंबई के फुटपाथ पर जाकर अंधे भिखारी के साथ ताल्लुक कायम किया। काफी अरसे तक उसके साथ बैठे, गिफ्ट शेड करते रहे, यानी कि उसके दर्द तकलीफ महरूमियों को महसूस करते हुए अपने अंदर जज्ब कर रहे थे। ये दर्द सिर्फ फिल्म में किरदार निभाने की खातिर उनके दिल में नहीं उमड़ पड़ा था, निजी जिंदगी में दर्द को सहा। जब जब मजलूम और नादारों को उनकी जरूरत पेश आती रही, दिलीप साहब फौरन उठ खड़े होते। ख्वाह वो वसीम जाफर क्रिकेट खिलाड़ी को लंदन का वीजा दिलवाना हो, या उसकी लंदन में माशी आनत का मामला हो, या फिर कारगिल जंग के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी नवाज शरीफ को फोन करते हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ आप लाहौर में मेरा इस्तकबाल करते हैं, दूसरी तरफ मेरी जमीन पर दरामजादी कर रहे हैं। नवाज शरीफ का जवाब मुलाहजा फरमाया, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने फौजी सरबराह परवेज मुशर्रफ से मालूम करता हूँ। तब वाजपेयी ने कहा था, मेरे बगल में एक शख्स बैठा हुआ है, आप इनसे बात कर लें। बगल में बैठे हुए शख्स के हाथ में फोन थमाया। उस शख्स ने जैसे ही सलाम किया, नवाज शरीफ ने कहा, अच्छा तो आप हैं? नवाज शरीफ ने फौरन उस शख्स की आवाज पहचान ली। कोई और नहीं, दिलीप कुमार की आवाज थी, जिसके जेर भी मखसूस लबो लहजा बर्रे सगीर का शायद ही कोई फर्द होगा जो उस आवाज को न पहचानता हो। बहरहाल दिलीप कुमार ने नवाज शरीफ से कहा, आपको मैं बता दूं, जब जब यहाँ हिंदू पाक के दरमियान ऐसी सूरत पेश आती है, यहाँ के मुसलमानों का घर से निकलना दुश्वार हो जाता है। हालात की पेचीदगी का आपको अंदाजा नहीं। बाबरी मस्जिद इंतहाम के वक्त मौजूदा हुकूमत से सिर्फ अपना एहतजाज ही नहीं दर्ज करवाया, बल्कि मारूफ वकील जफर याब जिलानी से मिलकर मुल्जमान के खिलाफ केस दर्ज करवाने तक का मामला। अब ये अलग बात है कि चंद अपने ही मीर जाफर की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के खिलाफ सुना दिया। बाबरी मस्जिद इंतहाम के बाद फसादात का फूट पड़ना। यूसुफ खान ने मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मदद की। फसाद से मुतासरीन के लिए अपना घर का दरवाजा खोल दिया और उन्हें पनाह दी। जब नामा निगार ने यूसुफ खान से पूछा, मुंबई जल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बरजस्ता कहा, मुंबई कहाँ जल रहा है, मुसलमानों की बस्तियां जल रही हैं। बिहार गए, वहां के वजीर आला लालू प्रसाद यादव की दावत पर बाबरी मस्जिद का किस्सा निकल गया। उन्होंने नहायत संजीदगी से कहा, सियासत को चाहिए कि बाबरी मस्जिद के लिए सियासत छोड़ दे। और फिर जब गुजरात में फसाद हुए, उस वक्त भी वो बहुत परेशान हुए। मुल्क की नफरत पर मबनी सियासत से बददिल और नाला थे। जब पाकिस्तान ने उससे भारत रत्न को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज निशान इम्तियाज देने का ऐलान किया, उस वक्त फरका परस्त अनासिर ने बहुत वावेला मचाया। बाला ठाकरे के उरूज का जमाना था। दिलीप कुमार के घर के सामने वीएचपी की कारकुनान मुजाहरा करने लगे, दिलीप कुमार के खिलाफ नारा बुलंद करने लगे। दिलीप कुमार ने बेबाकी का मुजाहरा किया और बाला ठाकरे से दो टूक कह दिया, मैं आपसे नहीं वाजपेयी जी से बात करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि अगर मुझे ये एजाज मिलने से हिंदुस्तान की गरिमा पर आंच आती है तो मैं एजाज वापस कर दूंगा। वाजपेयी अपना मखसूस लबो लहजा में मुस्कुराए और कहा, दिलीप साहब, हतमी फैसला आपको करना है। दिलीप कुमार ने आखिरी फैसला ये किया कि उन्होंने ये एजाज वापस नहीं किया। पाकिस्तान ने मुल्क का सबसे बड़े एजाज से दिलीप कुमार को नवाज कर अमन भाई चारे की मिसाल कायम नहीं की, बल्कि ये भी साबित कर दिया फन और फनकार सरहद की लकीरों से बालातर होता है। और ये बात हमारे यहाँ शिद्दत पसंद अनासिर को नागवार गुजरी और मखसूस नजरिए के हामी सियासी जमात ने दिलीप कुमार के मद्दे मुकाबिल बिग बी को ला खड़ा किया। जी हाँ, आप दुरुस्त समझे, अमिताभ बच्चन जी। हाँ, दिलीप कुमार नाम बनाम अमिताभ बच्चन फिस्ताई जहन के शऊरी कोशिश थी। सन 2000 में एक सर्वे करवाया
गया। अपने ही चंद हवारियों के दरमियान और अमिताभ बच्चन को सदी का सबसे बड़ा अदाकार तस्लीम करवाया गया, जिसके स्पष्ट सियासी इकरबा परवरी थी, उसके अलावा कुछ नहीं। वैसे जहां चंद तंग नजर अफराद पाए जाते हैं, वहां उसूल पसंद और गैरतमंद इंसान भी मौजूद होते हैं। उनकी गैरतमंदी ने दिलीप कुमार को भारत का पद्म भूषण अवार्ड 2015 में देने का फैसला किया। वादा रहे 1991 में पद्म भूषण अवार्ड और फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के 1994 में एहसास शख्सियत को दिया जा चुका था। दीगर मुतअद्दिद अवार्ड के अलावा वो राज्यसभा के मेंबर भी बनाए गए, लेकिन मेरा मानना है कि अबकरी शख्सियत एजाज व इकराम से बुलंद हुआ करती है। दिलीप कुमार वाहिद ऐसा अदाकार कि अदाकारी से किबल किसी अदाकार की फिल्म या शार्ट कभी नहीं देखी, क्योंकि वो किरदार को जिया करते थे। यह हौसला लगन हर किसी में नहीं पाया जाता। एक बार एक करीबी दोस्त ने दिलीप कुमार से दरियाफ्त किया कि अदाकार किसे कहते हैं। दिलीप कुमार ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, अदाकार उसे कहते हैं जो अदाकारी न करे। वाकई वो अदाकारी नहीं किया करते थे, किरदार की जिंदगी को पर्दे पर जी कर दिखाया करते थे। उनकी खास खुसूसियत ये थी कि वो अपनी आंखों से ऐसे तासरात पेश किया करते कि उनका एक तासुर 10 मकालमे पर हावी हो जाता। याद करें आंखों का वो तासुर जब फिल्म मुगले आजम में दरबार में रक्त पेश करती है रक्कासा यानी कि मधुबाला मशहूर जमाना नगमा, जब प्यार किया तो डरना क्या। दिलीप कुमार और पृथ्वीराज चौहान की आंखों के तासरात काबिले दीद थे। या फिर ये नगमा मोहे पनघट पर दिलीप कुमार की आंखों के तासरात वो सब कह डालती है जिसका बयान अल्फाज अदा करने से कासिर रहता है। दिलीप कुमार सिर्फ अदाकार नहीं थे, फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी भी थे। अगर वो फिल्मी दुनिया में नहीं आते तो फिर बेहतरीन फुटबॉलर होते। उन्हें अदब से बेपनाह शगफ था। खुसूसी तौर पर उर्दू और अंग्रेजी अदब का मुताला किया करते थे। उनका मुताला काफी वसी और अमीक था। वो अदब व सियासत पर घंटों बगैर तवक्कुफ बोलना जानते थे। हालांकि उनकी मादरी जबान पश्तो थी, लेकिन उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी इंतहाई रवानी से बोला करते थे। दिलीप कुमार की शख्सियत हुमा जहद थी। एक मजमून में उन जहाद का हाथा अजबस मुश्किल है। किस्सा मुख्तसर यह है कि दिलीप कुमार ने फिल्म बैराग में लीना चंदावरकर के लिए ये नगमा गुनगुनाया था, सारे शहर में आप सा कोई नहीं। लेकिन फिल्मी दुनिया से मुंसलिक तमाम अफराद और शायकीन दिलीप साहब के लिए ये नगमा गाते रहे हैं। बहरहाल अपने अयाम के आखिरी चंद साल उन्होंने खुद फरामोशी के माहौल में बसर किए। 11 दिसंबर 1922 गैर मुनक़सिम भारत के शहर पेशावर में उड़न खटोला पर सवार जवार भाटा दुनिया के मेले में राम श्याम, कभी मुगले आजम, कभी देवदास, कभी बैराग बनकर गंगा जमुना अबूर करता हुआ इस आजाद आदमी ने यहूदी की लड़की का दीदार क्या उसे दिल दिया, दर्द लिया और फिर आन इंतकाम त्याग कर शहीद और अमर हो गया। जाने कितने किरदार का रूप अपना कर सैर करते करते वाला आखिर 7 जुलाई बरोज चहारशंबा 2021 हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली और फिल्मी दुनिया का कोहनूर मुंबई के जूहू कब्रिस्तान में दफन किया गया, मधुबाला के कब्र से 2 फरलांग दूर। यकीनन आपको फिल्मी दुनिया के इस महान अदाकारा के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, तो मैं यहीं से इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।